वो गद्य है वो हमने अगले वीडियो लेसन में पढ़ा था, उसका आज हम फिर से अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो क्या આપણે આગલા લેસનમાં જોયું હતું કે શું મનુષ્ય નિરાશ થવાની જરૂર છે કે રક્ષણ કરવાવાળા ભક્ષણ બની રહ્યા છે। આપણે એક ઉદાહરણ પણ જોયું હતું કે જે કાનૂન જે છે એ કાનૂનને આપણે છેતરી શકીએ છીએ, પરંતુ આપણે ધર્મને છેતરી શકતા નથી। ધર્મથી આપણે ગભરાઈએ છીએ। તે વાત પણ લેખકે અહીંયા રજૂ કરેલી છે। હવે પછીનું જે છે તે છે કંડક્ટર અને ટિકિટ માસ્ટર જે છે એના ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવેલું છે અને પછીનો આપણે અભ્યાસ કરીશું। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना यानी कि जो गलत है वो सामने लाकर दिखाना क्या बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। क्या बुराई यही मालूम होती है कि किसी को आचरण का मतलब होता है व्यवहार को, गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसी में रस लिया जाता है। आजकल के नेताओं में हमने देखा है कि आजकल के जो नेता है वो विरोध पक्ष के जो नेता होते हैं उसका दोष ही निकाला करते हैं। इतना सब अच्छा होता है फिर भी एक कार्य जो नहीं होता तो वो ही दोहरा कर दिखाया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोष उद्घाटन, दोषों ही दिखाए जाने लगते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, लेकिन जो अच्छाई है वो अच्छाई को लोगों के सामने प्रत्यक्ष करना चाहिए और वो हमने प्रत्यक्ष नहीं की तो वो बुरी बात होती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें लोक चित्त में यानी कि लोक मानस में उजागर करने से अच्छी भावनाएं जागती है। लोग ऐसा करो वैसे करने के लिए तत्पर बनते हैं। કે અહીંયા એવું જણાવ્યું છે આ પેરેગ્રાફમાં કે શું દોષોને પ્રસ્થાપિત કરવું એ તો ખોટી વાત છે જ, પરંતુ એ ખોટી વાત જે છે એને વારે ઘડીએ એકબીજાની સામે આરોપ પ્રત્યાપ લગાવવો એ ક્યાં સુધીનો ન્યાય છે। અને લોકો આમ દોષ હોય ને એમાં બહુ રસ નહીં। કેટલીક વાર કોઈ સામે ઝઘડી કરતા હોય ને તો ત્યાં વહેલા તોડા પડીને ઊભા રહી જાય છે, પરંતુ કોઈ આમ મસ્ત જ્ઞાનની વાતો કરતા હોય ત્યાંથી છટકે છે। કેટલાક લોકો સારા છે કે જે લોકો સાંભળે છે, પરંતુ કેટલાક લોકો એવા પણ છે કે સારી વાતને वो ગ્રહણ કરતા નથી। પણ આપણે કઈ વાતને ગ્રહણ કરવાનું, સારી વાતને ગ્રહણ કરવાનું અને લોકોની સમક્ષ રજૂ કરવાનું હોય છે। અને સારી એક વાત આપણે રજૂ કરીએ ને તો આપણી પાસેથી પણ કોઈક સારી વાતો શીખે છે। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपयों का नोट लिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। ये जो एक घटना है वो लेखक ने यहाँ पे बताई है। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। આજે ટિકિટ માસ્ટર જે છે ટિકિટ માસ્ટરના ઉદાહરણ દ્વારા લેખક સમજાવે છે કે એકવાર ભૂલથી ટિકિટ બારી ઉપર જ્યારે ટિકિટ લેવા માટે જાય છે ત્યારે 10ની જગ્યાએ 100ની નોટ આપી દે છે અને
જલ્દી છે ને ગાડીમાં બેસી જાય. ઘણીવાર આપણી સાથે એવું બને છે, આપણે ટ્રેન પકડવાની એટલી બધી ઉતાવળ હોય ને કે આપણે જ્યારે ટિકિટ લઈએ છીએ તો મનમાં બસ એક જ વિચાર ચાલતો હોય છે. શું વિચાર ચાલતો? જલ્દી ગાડીમાં બેસી જાઓ. તો આ ભાઈ પણ કદાચ ઉતાવળમાં પણ હશે. રોજ અપડાઉન કરવાવાળાને તો આવી જ આદત હોય છે. એટલે એ ભાઈ જલ્દી ગાડીમાં બેસી ગયા. થોડીક સમય થાય છે અને ટિકિટ આપવાવાળો જે વ્યક્તિ છે એ પાસે આવે છે અને સેકન્ડ ક્લાસના ડબ્બામાં આવીને પછી લેખકને ઓળખી જાય છે અને પૈસા જે છે તે સામે આપી દે છે અને ખૂબ જ વિનમ્રતાથી 90 રૂપિયા હાથમાં આપી દે છે. આ પ્રશ્ન આવશે કે ટિકિટ બાબુએ લેખકને કેટલા રૂપિયા હાથમાં આપ્યા? हिंदी में प्रश्न आवશે, टिकट बाबू ने लेखक को हाथ में कितने रुपये दिए? 90 रुपये. यह बहुत गलती हो गई थी. आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा. और उसके चेहरे पर एक संतोष की गरिमा थी. गरिमा यानी गर्व કે આપણે છે ને કોઈકનું ભલું કરીએ અથવા કોઈ બોજામાંથી મુક્ત થઈએ ને તો આપણા મનને બહુ જ શાંતિ થાય છે. કેટલીક વાત એવી હોય છે કે જે આપણે મનમાં રાખી મૂકેલા હોય છે અને તે જ્યારે એકબીજાની સમક્ષ રજૂ થઈ જાય ને ત્યારે પણ મનમાં બહુ જ સંતોષનો આનંદ થાય છે. कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है. अगले जो पैराग्राफ थे उसमें लेखक ने कहा था कि आज ऐसा वातावरण बन गया है कि कोई ईमानदारी नहीं होता. लेकिन ये उदाहरण के आधार पर लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, नष्ट हो गई है. वैसी अनेक अवांछनीय घटना भी हुई है, परंतु एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है. एक ऐसी घटना है और ठगी और वांछनीय घटना से अधिक शक्तिशाली है કે શ્રેષ્ઠ છે. કે શું કહી શકું, આજે પણ ઈમાનદારી નષ્ટ થઈ ગઈ છે? પોતાની જાતને એવો પ્રશ્ન કરે છે. એક ઘટના તો એવી છે ને કે ઠગી કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે, સારામાં સારી ઘટના છે તે આ છે. एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था. मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे. बस में कुछ खराबी थी, रुक कर चलती थी. गंतव्य से कोई 5 मील पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया. रात के कोई 10 बजे होंगे. बस में यात्री घबरा गए. कंडक्टर ऊपर गया और वे एक साइकिल लेकर चलता बना. लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है. કે એકવાર લેખક બસમાં જઈ રહ્યા હતા. એની પત્ની અને સાથે 3 બાળકો પણ હતા. બસ બગડી ગઈ હતી અને ગંતવ્ય સ્થાન એટલે કે જવાના સ્થળથી 5 મીલ એટલે 5 કિલોમીટર પહેલા બસ एकदम सुनसान जगह ऊपर भी जवाब दे दिया यानी बिगड़ गया. रातना कोई 10 वाग्या હતા. બસમાં રહેલા યાત્રીઓ ઘબરાઈ ગયા હતા. કંડક્ટર ઉપર ગયો અને સાયકલ લઈને ચાલી ગયો. એટલે લોકોને એવું વિચાર્યું કે અમને જાણે કે અમારી સાથે ठगाई કરી રહ્યા છે. बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी. किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है. डकैती होना यानी लूटफाट होना. 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था. परिवार सहित में अकेला मैं ही था. बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे. पानी का कहीं ठिकाना न था. ऊपर से आदमियों का डर समा गया था. डर समा जाना यानी बहुत घबरा गए. બસમાં બેઠેલા જે લોકો જાતની વાતો શરૂ કરી દીધી. આપણે ઘણીવાર એવી ઘટનાઓ જોઈએ છે કે સાંત્વના આપવાની જગ્યાએ લોકો ગભરાટમાં ઓર વધારો કરે એવી વાતો કરતા હોય છે. કોઈકે કહ્યું કે અહીંયા તો લૂંટફાટ થાય છે. 2 દિવસ પહેલાં જ એક બસને લૂંટી લેવામાં આવી હતી. પરિવાર સાથે એકલો લેખક જ હતો. બાળકો પાણી માટે બૂમો મારી રહ્યા હતા, પણ પાણી ક્યાંય પણ હતું નહીં. એ તો અત્યારના જમાનામાં આપણે બોટલો ભરી લઈને જઈએ છીએ. તે સમયે કંઈ એવી સુવિધા હતી નહીં અને ઉપરથી માણસોનો ગભરાટ વધી ગયો હતો. कुछ नौजवान
ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। हवाइयाँ उड़ना यानी कि डर ज़्यादा लगना, होश खो बैठना। लोगों ने उसे पकड़ लिया था। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे, बचाइए, ये लोग मारेंगे। पण लेखक ने શું કહે છે કે અમે બસનો કંઈક ઉપાય કરીએ, પણ તમે આ લોકોને કહો કે મને મારે નહીં। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। એટલે ડ્રાઈવરને કહી દે છે કે કંડક્ટરને તો એ ડ્રાઈવર માટે કહે છે કે કંડક્ટરને તો સાયકલ પર ગયો છે ને તે તો ડાકુઓ પાસે મોકલાવ્યો હશે। એ આપણને ગુમરાહ કરી રહ્યો છે। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मार पीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी કે 1.5 કલાક થઈ ગયો, બાળકો પાણી અને ખાવાનું માટે તડપી રહ્યા છે અને બાળકો જો તડપતા હોય તો માતા પિતાની હાલત ખરેખર ખરાબ થાય છે। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। एक खाली बस आवे છે અને એના પર બસ કંડક્ટર પર બેઠેલો હતો। फिर उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। એટલે ડેપોમાંથી બીજી બસ લઈને આવ્યો છો આની પર બેસો। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। કે આ ઘટના છે એ ઘટનાને જોઈને લાગે છે કે શું માનવતા મરી પરવારી છે કે બસ કંડક્ટર જે છે બસ તો લેવા ગયો જ હતો, પણ સાથે સાથે લેખકના બાળકો માટે દૂધ અને પાણી પણ લઈને આવે છે। અને 12 વાગ્યા પહેલાં બધા જ એ જે સ્થળ છે ત્યાં પહોંચી જાય છે। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, पर बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। जीवन में घणी बधी एवी घटनाओं बने छे કે જ્યાં આપણે વિશ્વાસઘાત આપણો થાય છે, પણ બહુ ઓછી જગ્યાએ થાય છે। ઠગી થાય એટલે કે આપણને છેતરપિંડી આપણી સાથે કરે છે, પણ બહુ જ ઓછી જગ્યાએ વિશ્વાસઘાત થાય છે। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया गया है, तो जीवन कष्टकर हो गया जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कई बार रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। કે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જે છે એ કહે છે કે તારા ઉપર વિશ્વાસ रहे कि कभी भी मैं तुम्हारे ऊपर की जो आस्था है उस आस्था में मैं कभी न डगमगाऊं। लोग कहे છે ને નરસિંહ મહેતાએ તો કહેલું છે ને
કે ભલું થયું ભાંગી જંજાળ સુખે ભજી શું સગી ગોપાળ તેમ અહીંયા રવિન્દ્રનાથ ટાગોર પણ કહે છે કે ભલે ને દુઃખો આવે પણ તારો વિશ્વાસ તો કાયમ રહેવો જ જોઈએ। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तु आए दिन उन्हें बदला ही जा रहा है लेकिन अब भी आशा की जोत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई और बनी रही है कि हमारे भारत देश में आज भी श्रेष्ठ है, आज भी मानवता है। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है कि मेरे मन निराश होने की कभी भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये हमारा जो गद्य है वो पूर्ण होता है और पीडीएफ के द्वारा मैं उसके जो प्रश्न है वो आपको पूछूंगी। आप उसका अध्ययन करना और नोट में भी जरूर